کر کرم محبوب داور سیدی مدنی میاں پر کر کرم محبوب داور ہاشمی مدنی میاں پر عمر میں برکت عطا کر دین کی خدمت لیا کر. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ آج کی آڈیو سماعت کریں گے، ایک دیوبندی عبدالملک اور ان کے ہمراہ کئی لوگ جو کہ یک کے بعد دیگرے مجھ سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی ایک ایسا عالم بھی نہیں جن کے اندر تنہا صلاحیت ہو کسی اہل سنت و جماعت سے بات کرنے کے لیے. یہ جب ایک سے نہیں ہو پا رہا تھا تو وہ دوسرے کو فون دے رہے تھے، جب دوسرے سے نہیں ہوا تو تیسرے کو دے رہے تھے. لیکن خیر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوران گفتگو انہوں نے میری طرف ایک غلط بات منسوب کی کہ میں مفتی ہوں اور منظر اسلام سے میری فراغت ہے. حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. نہ میں مفتی ہوں اور نہیں میری فراغت منظر اسلام سے ہے، اور نہ میں عالم ہی ہوں. میں ایک عام سا بندہ ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جماعت اہل سنت شناخت بریلوی میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ وہ دکھتے تو عام ہیں لیکن کسی بد مذہب میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ اس سے مکالمہ کر لے کسی موضوع پر. بہرحال تو یہ چیز کو آپ سماعت کر کے آپ تھوڑا سا بھی کنفیوژن کا شکار نہ ہوئیے گا کہ ایک مفتی صاحب سے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ مفتی صاحب کے الفاظ یا مفتی صاحب کے جو انداز ہیں بات کرنے کے وہ کس طرح کے ہیں. تو اس سے آپ تذبذب کا شکار نہ ہوئیے گا، کیونکہ میں مفتی ہوں نہیں اور نہیں میری فراغت منظر اسلام سے ہوئی ہے. میں وضاحت دے ہی چکا ہوں کہ میں ایک عام سا بندہ ہوں. باقیہ گفتگو آپ سماعت کر سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے باتوں کو الٹ پلٹ کی اور باتوں کو خلط مبحث کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت والوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیہ کی گالیاں وغیرہ بکی ہے. ہاں ابھی تو آپ کے حکیم علومت نے لکھا ہے. کہاں پر؟ حضرت جو ہے ان کو حوالہ دینا احمد یار خان نہیں کا. ہلو جی بھیجیں. یہ ہمارے حضرت بات کریں گے آپ سے. حضرت بات کر رہے ہیں؟ کون حضرت؟ ہیلو کون حضرت بات؟ غلام گوس رجوی صاحب. جی فرمائیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب گستاخ رسول ہیں، کافر ہیں اور مشرک بھی ہیں پکے. اچھا مشرک ہیں، کافر بھی ہے، گستاخ رسول ہے، تو یہ مرتد ہے. ایک منٹ کہتے ہیں کہ کافر گستاخ رسول، یہ تو بات کے درجے کی ہے. اس سے جو سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے وہ مشرک کا ہوتا ہے. کبھی نہیں، ہمارے نزدیک سب سے بڑا جو درجہ ہے اور سب سے خطرناک جو معاملہ ہے وہ گستاخ رسول کا ہے. مشرک کا نہیں ہوتا ہے. وہ گستاخ رسول ہے. ایک منٹ ابھی بات ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے بڑا درجہ گستاخ رسول کا ہوتا ہے، مطلب مشرک کا نہیں ہوتا. کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ یہ رہا ہوں. چلے عبد الملک نام ہے جی. اچھا دیکھیں، ابھی آپ نے کہا کہ آپ کا یہ نظریہ ہے کہ گستاخ رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے مشرک کے سامنے، یعنی مشرک جو گناہ کرتا ہے مشرک تو بہت حرامی ہوتا ہے. ایک منٹ وہ الگ ہے، لیکن آپ نے تھوڑا سا مشرک کو کم درجہ دے دیا کہ کم گناہ بتایا، اور گستاخ رسول کو مشرک سے بڑا گناہ بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا. ایک منٹ نہیں، وہ تو الگ بات ہے. آپ نے یہ کہا کہ آپ کے مشرک ہے.
आप ही के किताब में लिखा हुआ है ना भैया एक कि मिनट, एक मुशरिक तो मिनट। मुसलमान हो सकता है, लेकिन मैं- जो गुस्ताख रसूल है उसका तो तौबा भी कबूल नहीं है। एक मिनट, ये बात लिखा आपने के बात नहीं में भी लिखा कही। आपके आला हजरत अभी से। अभी सुनिए तो सही। अब नहीं, ये बात तो बात हाँ। नहीं है। अभी आप क्या कह रहे थे? आप ये कह हाँ, रहे हाँ। थे कि मेरे नजदीक, लफ्ज मेरे के साथ आपने ये बात कही है कि मेरे नजदीक जो गुस्ताखे रसूल है उनका गुनाह बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुशरिक का उतना नहीं होता। मुशरिक को आपके नजदीक अपने आप को, मुशरिक को आपने छोटा कहा और गुस्ताखे रसूल को बहुत बड़ा कहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अरे रसूल भैया की आपके आला गुस्ताखी, हजरत एक की मिनट, बात एक को मिनट, दोहराया मैंने। एक मिनट, जो रसूल की गुस्ताखी, अरे जो मुफ्ती रसूल की, साहिब आप तो घूम गए यार, ही का बात हुआ। अरे मैं घूम नहीं गया, मैं आपकी बात को बता रहा हूँ। आपके आप आला लफ्ज हजरत मेरे की के बात साथ को कहे, मेरे दोहराया ना नजदीक। हमने, आपके आला हजरत ने बोला है भाई। अरे भाई, तो आप मेरे नजदीक बोलो, क्यों झूठे कहें? थे। लफ्ज मेरे बोल नजदीक दो क्यों झूठे कहें? थे। अगर आला हजरत अगर कहें तो आपके आपको जो ये आला कहनी हजरत है, वो चाहिए झूठे थे थी। का? एक मिनट, आपको ये कहने चाहिए थी कि आला हजरत के नजदीक, हाँ। लेकिन आपने कहा कि मेरे नजदीक गुस्ताखे रसूल बहुत बड़ा गुनहगार हाँ। है और मुशरिक कम है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि जो नबी की हाँ, हाँ। गुस्ताखी करे तो वो तो बहुत बड़ा गुनहगार हुआ, और जो अल्लाह के साथ हाँ। किसी को शरीक करे उसको ज्यादा गुनाह नहीं मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। अब हम आपने जवाब तो दें? नबी का दर्जा अब खुदा हम से बढ़ा जवाब दिया। दें? अस्तगफिरुल्लाह अरे भैया, हम माज़अल्लाह। जवाब आपने नबी दें? का दर्जा तो खुदा से बढ़ा दिया। अरे भैया अब हम जवाब दे दें या नहीं दे दें? क्या जवाब? पहले इसका जवाब दो, हाँ, पहले उसी इसका का जवाब जवाब दो दे कि रहा हूँ तुम्हारे भैया। नजदीक गुस्ताखे रसूल। ओहो, एक मिनट जवाब दूं या ना दूं? क्या जवाब दोगे? इसका जवाब दो। अरे हम देंगे ना जवाब, हमको देना हाँ। है, आपको देना है। अच्छा, जवाब दो। अभी देते हैं, सुनिएगा जरा। कुरान में अल्लाह ने कहा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। किसको जी। कहा था ये? किसको कहा हाँ। था? आप तशरीह करते रहे, आप करते नहीं रहे कहा, तशरीह। किसको था ये? आप तशरीह अरे करते मुफ्ती रहे। साहिब किसको बोला था, किसके बारे में आयत है? नहीं, आप तशरीह करते रहे ना, मैं भी आपको बता अरे देता हम हूँ। पूछ रहे हैं भैया, हम तशरीह करेंगे ना, ये आयत है किसके बारे में? आप ही बता कौन था वो? आप ही बता दीजिए। लो फिर काहे के मुफ्ती हो भैया? मुफ्ती अरे- आ जाते हो खामा खा। अरे सुनो, पहली बात तो हम तो आपको खुद ये को तक मुफ्ती पता कहते है नहीं। कि हमारे किसके यहाँ बारे में आयत उतरा है? ये आयत अरे कौन कौन? अरे सुनो ये आयत का मुस्ताक कौन है, पता है आपको? अरे सुनो, बोलोगे तो मैं तर्जमा भी कर दूंगा, इसका मतलब वो मफहूम भी बता दूंगा, लेकिन तुम यहाँ पे करो, डोंगी करो, मत करो, तुम अपनी करो बात क्लियर। भैया, करते काहे नहीं हो? मैं सुनो, ये आयत मुबारका नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुतालिक है कि उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, यानी कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, गोया कि वो जना का पैदावार है, वो हलाली नहीं और कौन हरामी था है वो वो। आदमी? एक अच्छा, मिनट। ये मुझे आयत दिखाओ जहाँ पे अल्लाह ने ये लिखा हो कि जो मेरी शान में गुस्ताखी करे वो हराम ज्यादा है। हो गई बात मुकम्मल आपकी? दिखाओ। हाँ, हो गई? हो गई, दिखाओ। चलिए एक मिनट। पहली बात यह है दिखाओ। कि आप आयत पढ़ो, पहले आयत पढ़ो, एक आयत अरे पढ़ो। ना, सुनो, ना, ना, ठीक है, अरे आयत सुनो, पढ़िए। अरे सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि जो नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो उसको तो ज्यादा हाँ। गुनाह मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो अल्लाह की हाँ। शान में गुस्ताखी करेगा, जैसा कि आपके रशीद अहमद गंगोही ने कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ज़ना हाँ। वगैरह ये सब चीजों की हाँ। बात उन्होंने कही थी। अस्तगफिरुल्लाह हाँ। माज़अल्लाह। लगता है इसी ख्याल अच्छा। से आप लोगों ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी है कि एक अच्छा। नबी की शान में तो अच्छा। नबी की शान में तो ज्यादा मिलेगा अहमद रजा गुनाह, खान ने लेकिन लिखा था अगर कि अल्लाह की से शान हवाओं में अगर करेंगे अल्लाह से तो हवाओं कम ने गुनाह मना कर मिलेगा। दिया, वो कहा था भैया। एक मिनट रुक जाए, ये तो वो शुरुआत जो है, आप हवाओं बखला से क्यों बच्चे गए? पैदा करवा रहे थे आपके आला हजरत। एक और मिनट अल्लाह से बोला रुक कि जाइए। अल्लाह को मना ही कर दिया। आपका रशीद अहमद गंगोही एक मिनट, आपका ये कहना, सुनिए ना, आपका ये अरे कहना, हमारा कहना ये है कि तुम्हारा जो आला हजरत था ना, वो बदतरीन गुस्ताख है, उसकी तौबा कबूल नहीं है, हो वो गई बात। जहन्नम का ईंधन है। हो गई बात। समझ आई? हो अहमद गई बात रजा आपकी। खान बरेलवी ईंधन जहन्नम का ईंधन है और हराम ज्यादा भी है साथ में, ये बोल रहा हूँ मैं भैया। हो गई अब बात आप हमारी आपकी। बात को घुमा काहे रहे हो? हमने बोला, अच्छा हमने साबित भी किया। अरे भैया बात को घुमाओ मत। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, साहिब, मेरी आदत है, मैं काहे एक घुमा रहे प्लेटफॉर्म पे हो? रहता हूँ, तुम्हारा मेरी आला आदत हजरत है। बोलता है कि नबी के गुस्ताख की तौबा कबूल नहीं। हो गई बात, बोला या नहीं बोला? इसका मतलब वो झूठा है ससुरा। हो गई बात आपकी मुकम्मल।
अरे बात कहाँ हो गई, आप हमारी बात का जवाब काहे नहीं देते हो भाई? अरे सुनो तो सही, तो सुनोगे तब तो जवाब दूंगा। काहे घूम रहे हो हमको लेके? अरे लगता है कि काफी ज्यादा डर गए, लगता है अरे काफी भैया ज्यादा हम डर तो गए। बहुत डरपोक आदमी हूँ, हम सुनो बहुत सुनो डरता हूँ। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हमको कहते हैं कि हिफ्जुल ईमान में, मुझे कौन नहीं डरता, हम तो डरता हूँ। अच्छा सुने ना, आपके बकौल के बारे में कह रहा हूँ। कहते हैं कि आपके बकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो हिफ्जुल ईमान में आपके अशरफ, एक मिनट, बहुत बड़ा से यानी कि अल्लाह की गुस्ताखी करने से भी बड़ा गुनाह है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। अरे नालायक, आला हजरत बोल रहा है भैया। अबे तुम लफ्ज़ मेरे के साथ कहे हो, मेरे नजदीक ये बोला या नहीं बोला? मेरे नजदीक ये रिकॉर्ड सुन लेना, बोला या नहीं बोला? ये रिकॉर्ड सुन लेना। आप हम पे लगाओगे वो पहले अपने आला हजरत पे लगाना। आला हजरत ने कहाँ लिखा है? अच्छा सुनो, आला हजरत ने है कि नबी के गुस्ताख की तौबा कबूल नहीं, मुशरिक की तो तौबा कबूल है। मुशरिक कभी भी इस्लाम कबूल कर लेगा, मुशरिक तो कभी भी मुसलमान हो जाएगा। लेकिन आला हजरत ने बोला कि नबी के गुस्ताख का तौबा कबूल नहीं है। अब हमको बताइए, जो फतवा हम पे लगाओगे पहले अपने पापा पे लगाइए, हम पे काहे लगा रहे हो भैया? हो गई बात, अपने पापा को बोलो ना, हो गई मुकम्मल, डैडी को बोलो। आप सुने, सुने मैं बोलते रहो, हमको जवाब। पहली बात ये हवाला आप मुझे भेजें, इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। कौन सा? ये हवाला आप मुझे भेजें, और उसके बाद में आपको। कौन सा हवाला? समझा नहीं मैं। नहीं समझे, कहते हैं लगता है दिमाग घूम गया। कौन वाला? अभी बात कर ही रहे हो और कहते हो कि कौन हवाला, इतनी जल्दी दिमाग। अरे कौन वाला हवाला? इतनी जल्दी तुम्हारी अकलें जाइल हो गई, बताओ इतनी जल्दी। अरे भैया कौन सी बात का हवाला चाहिए बताओ? अभी क्या चीज बता रहे थे तुम? क्या बता रहा था मैं? बताओ कौन मैंने के बारे में बताई, कौन सा वाला चाहिए बताओ जल्दी। अभी आला हजरत के मुतालिक तुमने जो बातें कही है, क्या कही है वही तो सुनना चाहता हूँ मैं। हम क्या बोले? मैंने कहा उसी का हवाला भेजूंगा ना भैया। सुनो अभी भी वक्त है, बोला मैंने? अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। अशरफ अली थानवी ने हिफ्जुल ईमान में रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करके छोड़ो और मुसलमान बन जाओ। अरे सुनो तो जहन्नम में जाओगे ही, कमीनों सबको लेके जाओगे के साथ में। मैं क्या कह रहा हूँ, अशरफ अली थानवी ने तो गुस्ताखी की ही, पंडू है अशरफ अली थानवी ने तो गुस्ताखी की ही है। लेकिन देख रहे ना, ये सुनेगा नहीं, पता है कभी नहीं सुनेगा। जा रहे हो खन्नासो, तुमको इन लोगों की आदत है। हमने तुमको हवाला दे दिया तो फट गया। इन लोग अबे कहाँ हवाला दिया, भेजो तो सही, कहाँ हवाला दिया? अरे किस बात का चाहिए तो पूछ रहा हूँ मैं। तू अपनी कहाँ होता? अभी तुम कह रहे थे कि हमने हवाला चाहते हो। अभी तुमने कह रहा था हमने हवाला दे दिया। किस बात का चाहिए? अभी तुमने कहा मैंने हवाला। देखे ना, ये लोगों की आदत होती है, इन लोग की आदत ये होती है कि ये लोग अपनी बातों से मुकरने लगते हैं, एक बात कभी नहीं रुकते हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई गुस्ताखी करता है तो कहते हैं कि वो उसमें ज्यादा गुनाह मिलता है। किस गुनाह से बनिस्बत? तो उस गुनाह से बनिस्बत कि अगर कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए। लगा रहे हो ये तुम्हारे आला हजरत पे लगेगा फतवा। ये सूरत हाल है इन लोगों की। अहमद रजा खान पे फतवा लगा रहा है। सोचे तो सही कि इन लोगों की जो मामलात है, नजरियात है इन लोगों के, ये कितने कबील है। बरेलवी मुफ्ती अपने आला हजरत को काफिर बोलेगा अभी? कितने कबील हैं। अहमद रजा खान को काफिर बोलेगा तू? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो पहले सुनो। अरे भैया हमको बोलने से पहले उसको बोल, पहले जाके ही बात वो बोला है। हाँ तो ये वाला हवाला भेजो, बोला है ये हवाला भेजो। शरीयत में हम हवाला देंगे आपको, बिल्कुल दिया जाएगा भैया। सफा नंबर बताओ। बिल्कुल, सफा नंबर जेब में रख के थोड़ी ना घूमते हैं हम। हो गई बात। नाज़रीन ये है आदत इन लोगों की। नाज़रीन भाई हम आपको हवाला भेजूंगा, इसको भेजो। ये है आदमी को हवाला भेजो। और अगर ये नहीं लिखा हुआ है काम शरीयत में, सुन दे, अगर ये तुम्हारी किताब में नहीं लिखा हुआ, अगर रसूलुल्लाह की गुस्ताखी, अरे सुनेगा अल्लाह के सामने भागा, अल्लाह के साथ भागा। अरे मैं नहीं भागूंगा, मैं कयामत तक रहूंगा, तुम भाग जाओगे। भागा कभी ना। अरे तुम भैया जब हम नहीं बोल रहे हैं तुमको सुनो कहीं के, अरे भैया जब नहीं बोल रहे हैं, कहाँ पर लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करोगे तो ज्यादा ना हुआ मिलेगा और अल्लाह के साथ जो है देवबंदी छोड़ के बरेलवी बन जाऊंगा।
ये बात कहाँ लिखी है? किसने बोला? पहले किसने बोला? ये बात हमने कब बोला बे? जरा दो बात सुने। हेलो हेलो 2 मिनट तय कर ले 2 मिनट तय कर ले और फिर जी बिल्कुल ऐसे मजा नहीं आता ना गुफ्तगू में। जी बिल्कुल। हाँ 2 मिनट तय करो भैया मुफ्ती। 2 मिनट तय करो। प्लान पे कौन है वो भैया? अब्दुल्ला साहब। हेलो अब्दुल्ला साहब। हेलो वो अब्दुल्ला साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। 2 मिनट तय कर रहे हैं। हामिद भाई आप लाइन पे 2 मिनट तय करो रे भैया। हेलो हामिद भाई। अरे यार जा बोलिए। अच्छा रहने देना। सुनिए ना मैं बता रहा हूँ इनका नहीं बताइएगा, पहले 2 मिनट तय कीजिएगा। 2 मिनट तय करो। 2 मिनट आप बोल रहे हैं, 2 मिनट आपके बीच में ये नहीं बोलेंगे और आपके बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है? जी ठीक ऐसे बात करें आप, ठीक है? ठीक है भाई ठीक है ओके करो बात। बोलिए। अच्छा मैं बोलूँ? देखिए बोलिए। पहली बात तो ये है कि आपने जो बातें शुरू की, आपने जो बातें शुरू की, आपका ये कहना है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसको ज्यादा गुनाह मिलेगा, लेकिन अगर कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है तो उसको कम गुनाह मिलेगा। और यह बात आपने जो कही तो मैं जैसे ही आपकी गिरफ्त किया हूं तो आपने कहा मेरे नजदीक, फिर बाद में आपने ये कहा कि नहीं आला हजरत के नजदीक। तो मैं कहता हूं कि आप यही बात दिखाइए अगर वाकई आला हजरत ने कहीं लिखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करोगे तो कम गुनाह मिलेगा और अल्लाह ताला के साथ शरीक करोगे तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करोगे तो ज्यादा गुनाह मिलेगा और अल्लाह के साथ किसी को शरीक करोगे तो कम गुनाह मिलेगा। ये बात अगर वाकई आला हजरत ने कही है तो आप मुझे बताएं। आपने हवाला दिया था अहकाम शरीयत का, अहकाम शरीयत मेरे पास मौजूद है। आप सफ़ा नंबर बताएं, मैं खोल करके देख रहा हूँ। तो जब मैं सफ़ा नंबर तलब किया आपसे तो आप ये कहने से कासिर हो गए, आप इनकार कर दिया। आप कहने लगे कि मेरे पास हवाले जेब में थोड़ी रहते हैं कि मैं निकाल करके दूं। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप गलत बात क्यों मंसूब की किसी की तरफ? आपको हदीस मुबारक नहीं मालूम कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान ने किसी की तरफ झूठ बात भी मंसूब की तो उसका ठिकाना जहन्नम है। आप अपना ठिकाना जहन्नम क्यों बनाते हैं? आप झूठ बोल करके खुद पर अल्लाह की लानत के मुस्तहिक ठहरा लिए खुद को आपने। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत है। यहीं तक नहीं, आप अपने घर का जायजा लीजिए कि अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इल्म गैब के मुतालिक मैं सफ़ा नंबर भी बताता हूँ। मैं बोलिएगा तो कंपनी का नाम भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा आपको कि आपके अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में लिखते हैं क्या कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जैसा आपका टाइम पूरा हो गया। बाद में बोलना जी सर। आप बोले भैया हम जी हाँ बोले आप बोले। अरे सामीन, ये मुफ्ती साहब हैं बरेली के, बहुत ही बड़े, ये मंजर इस्लाम के पढ़े हुए शख्सियत हैं। हम जब इनसे बात शुरू हुआ तो हमने इनको ये बात बोला कि नबी की गुस्ताखी बहुत ही बड़ी शय है। ठीक है, नबी का गुस्ताख बहुत ही बड़ी शय है, अल्लाह के गुस्ताख से बड़ा होता है, यही बोला हम इस आदमी को। ठीक है, जैसे ही हम पूरी बात बोलने लगा भाई अभी के कूद पड़ा कि मुशरिक बड़ा होता है कि नबी का गुस्ताख बड़ा गुनाहगार होता है। अभी हम इसको बताते हैं कि इनकी किताब के बकौल बोल रहा हूं मैं, अहकाम शरीयत में लिखा है कि नबी के गुस्ताख का तौबा कबूल नहीं है और मुशरिक कभी भी मुसलमान बन सकता है, अल्लाह उसको ईमान अता कर देगा। और अहकाम शरीयत में इनके जो वो है आला हजरत वाला हजरत जो भी है वो लिख के गए हैं कि वहाबी और देवबंदी कभी भी तौबा नहीं कर सकता। इसका भी हवाला हम भेजेंगे, अगर नहीं भेजा तो हम देवबंदी छोड़ दूंगा भैया। वो लिख के गए हैं उसमें कि नबी के गुस्ताख की तौबा कबूल नहीं है, तौबा भी करेगा तो तौबा कबूल ही नहीं है। बता दीजिए, लेकिन मुशरिक कभी भी मुसलमान बन जाएगा, अल्लाह का गुस्ताख कभी भी मुसलमान बन जाएगा। ए भैया हमारे बीच में नहीं बोलो। अच्छा चलो ठीक है। इनके आला हज अभी हमारे पास बोला कि तुम्हारे जो अशरफ अली थानवी हैं उन्होंने लिखा हिफ्जुल ईमान में इल्मे गैब पे। अभी हम इनके मलफूजात आला हजरत से बताते हैं कि इन्होंने नबी का सब्बाती लिखा है।
वो अगर आदमी इनमें गैप पे लिख के उसका तौबा कबूल नहीं है तो इनका जो आला हजरत है वो लिख रहा है अपना किताब में मलफूजात में कि नबी के सामने बीवियां पेश हो रही है, वो सब बात करते हैं। काबे हमारे ऊपर इंजाम लगाते हो, ये बेगैर की किताब में लिखोगे तुम लोग और सवाल हम पे उठाओगे और ये लिखा दिखा दे हिब्जुल ईमान में कि जैसा और ऐसा। वो सिक्स्थ सेंस पे बात हो रही थी, हमारे पास उसका जवाब है और अल मुहन्नद में हमारे आलिमों ने दिया। चलो टाइम हो गया, टाइम हो गया। बड़े खन्नास है। बोलो भैया बोलो। अब्दुल्ला साहब एक मिनट, हजरत अब्दुल्ला साहब हेलो, मैं बात करता हूँ। देखिए मोहतरम नाज़रीन, ये जो अब्दुल मलिक नामी शख्स जो है, या बहरहाल इन्होंने फोन किसी और को थमा दिया, ये इनका पहला एतराज ये था कि हुजूर आला हजरत अली रहमत व रिजवान ने ये अपनी किताब में लिखा कि अगर कोई नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुतालिक गुस्ताखी करता है तो उसकी तौबा कबूल न होगी, और जो अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करता है यानी मुशरिक अगर तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। बकौल इसके मैं तो इसको चैलेंज करता हूँ कि तुम असल इबारत दिखा दो कि वाकई हुजूर आला हजरत ने इस तरह लिखा हो कि देवबंदी अपनी कुफरिया इबारत से तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती। हालांकि अल हक़्क़ुल मुबीन उठा करके देख ले अल्लामा सईद अहमद काज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की, जो कि एक बरेलवी आलिम है, उनकी किताब उठा करके देख ले। वो खुद कहते हैं कि आज भी मैं हुजूर आला हजरत भी पूरी जिंदगी ये कहते रह गए अशरफ अली थानवी को कि तुम अपनी कुफरिया इबारत से रुजू कर लो, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन क्या हुआ, ये अशरफ अली पैखानवी उन्होंने रुजू करने की बजाय उसको सही साबित करने के लिए बस्तुल बनान भी लिख दिया। बहरहाल फिर उन्होंने एक एतराज किया कि अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो ज्यादा गुना और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो कम गुना। हालांकि इन्होंने ये बात शुरू में कही थी मेरे नजदीक। अगर इसकी यही बात को अगर रखा जाए तो सुनिए, ये देखिए इनके आलिम कौन आलिम है। मैंने पहले हिफ्जुल ईमान की इबारत को बताया कि इनके मौलवी अशरफ अली थानवी ने नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी की और नबी के इल्म को जानवरों और पागलों की तरह उन्होंने कहा कि जैसा नबी को इल्म है वैसा इल्म जानवर, पागल, हर सबियो मजनून को है। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। ये हिफ्जुल ईमान की सफ़ा नंबर 18 पर ये बातें लिखी हुई है और उन्होंने तो सफ़े नंबर भी नहीं बताए। मैं कहता हूं मेरे पास असल स्कैन है, मैं हर किताब का स्कैन आपको भेज रहा हूं। फिर दूसरी बात, ये रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीद, आपको टाइम पूरा हो गया, 5 मिनट बोलोगे ये अब्दुल्ला तो खामोश निकल रहा आपको। एक मिनट फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही सफ़ा नंबर 1 पूरा हो गया भैया का ये लिखते हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन रसूल की नहीं, देखो ये फट गया, ई बरेल भी फट गया, यानी रसूल अलैहि सलाम का दोबारा बाद में बोलना। एक मिनट, अरे भाई इतनी जल्दी कहाँ पूरी हो गई? अरे एक मिनट का है भैया, बोलोगे ना 3 मिनट हो गया आपको, आप टाइम तो देखो। 3 मिनट से बोले जा रहे हो, 2 मिनट से तुम्हारा जो साथ में बंदा है वो तुमको बोलता नहीं है क्या? वो कहाँ बोलेगा, तो 1 घंटा बोलने। अरे आप बोला करो अनीस भाई। चलो मैं तो सामने सुनो भैया सामीन, अब हमारा सुनिए जो हम बोलेंगे। ये बोला कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके नाम के साथ इसने इस आदमी ने बदतमीजी शुरू की है। अभी हम बोलते हैं कि अहमद रजा भड़वेलवी भड़वा, इनका आला हजरत जो भड़वा था वो भड़वा अपनी किताब में लिख के गया है नबियों का शब्बासी, उस पे ही लोग बात नहीं करते हैं, साला मुंह बंद हो जाता है इन कमीनों का। टाइम खत्म हो गया, जवाब देता हूं। आदमी ने अपनी मलफूज में लिखा, उस आदमी ने अपना मलफूज में लिखा कि हवाओं ने चलने से मना कर दिया अल्लाह को। गुस्ताखी कौन किया? वो आदमी फतावा अफ्रीकिया में लिखा, मेरे पास सबका हवाला मौजूद है, सबको लगाऊंगा इंशाल्लाह यूट्यूब पे। वो आदमी लिखा कि अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा नबी के बराबर है। ये हमको बात का बताने के लिए आए हैं। जो लोग ही बोल देते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी का पांव सारे नबियों की, सारे वलियों का गर्दन पे है, वो हमको बताने लगे हैं गुस्ताखी क्या होता है। जिनका पूरा मजहब गंदगी पे टिका हुआ है, जो आदमी झूठ मूठ बोल के हरम में जाके फतवा लेके आता है। हमने जब अल मुहन्नद लिखा तो इनका मुंह बंद हो गया, हमने अल मुहन्नद लिख के भेजा, वहां पे इनका मुंह बंद हो गया। ये साबित कर दे कि वो फतवा दिया किसने था। वो तो 4 मुसल्ले थे, तेरे बाप फतवा लेके आया था बे वहां से, हो बरेलवी हो, सारे खन्नासी हो, हमसे बात करो तुम। कौन से सन की बात है?
जरा बताइए कौन से सन में फतवा लेके आए तुम लोग? झूठ मूठ बोल के वहां पे गए और उन लोगों को बरगला के तुम लोगों ने फतवा ले लिया। अपनी इबारत नहीं दिखाई का? नबियों का शब्बासी लिखते हो कमीनों, ये बड़ा गुस्ताखी है, ये बड़ा गुस्ताखी है। खुद अपनी किताब में लिखा है उसने अहकाम शरीयत में, हम पूरा स्कैन लगाऊंगा, उसने बोला कि नबी के गुस्ताख की तौबा कबूल नहीं होती और उसके नजदीक अशरफ अली थानवी गुस्ताख है, और अगर उसके नजदीक अशरफ अली थानवी गुस्ताख है तो उसका तौबा कैसे कबूल होगा? खुद लिखते हैं ये लोग, ये आयत लिखी है उस आदमी ने वहां पे कि इनकी तौबा कबूल नहीं होगी कभी, नबी के गुस्ताख का तौबा कबूल नहीं होता। खुद लिखते हैं कमीने, और जब बात आती है तो भागते नहीं लोग। अरे हमसे बात करो ना साला, आओ, तुम्हें कौन है तुम लोगों में बात करने के लायक? झूठ बोलता है कि हमारे आला हजरत ने लिख दिया, उसमें फलाने बुजुर्ग ने लिख दिया। अब बात अहमद रजा खां भड़वेली की चल रही है, उस भड़वे से पूछो जाके उसने क्यों काहे लिखाई। सारी दुनिया को काफिर काफिर बोल के गया, इनका नमाज नमाज नहीं, जबिया जबिया नहीं, अजान अजान नहीं, मस्जिद मस्जिद नहीं, वो हदीस लिखाई। अहकाम शरीयत में मेरे पास क्या मौजूद है? तो टाइम होता है, टाइम होता है, टाइम होता है। बोलो मोहतरम नाजरीन, मैं इनके हर एतराज का जवाब दिया कि इन्होंने हुजूर आला हजरत के मुतालिक जो गलत बात मंसूब की, मैं तो पहले इससे हवाला तलब किया, फिर उसके बाद ये उससे भी कासिर रहा, सफ़ा नंबर वगैरह बताने से तो कासिर ही रहा, हवाला तो छोड़े सफ़ा नंबर तक नहीं बता रही है। हालांकि मेरे पास किताब मौजूद है अहकाम शरीयत, लेकिन क्या करें, देवबंदी अक्ल से एकदम पैदल होते हैं, इनकी अक्लें घुटने में होती हैं। खैर, इन्होंने नाजरीन एक एतराज किया। वो एतराज क्या किया? वो एतराज ये किया इन्होंने कि हुजूर आला हजरत अली रहमतुल्लाह व रिजवान ने शब्बाशी के मुतालिक कही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र में हुजूर की जो ज़ौजा मोहतरमा है उनको पेश किया जाता है। तो लफ्ज़ शब्बाशी के अल्फाज हुजूर आला हज़रत ने इस्तेमाल किए तो हुजूर अपनी ज़ौजा से शब्बाशी फरमाते हैं। तो ये एतराज़ किया, देखो गुस्ताखी हो गई। मैं इन जाहिलों से पूछता हूँ कि सुनो, अशरफ अली थानवी की किताब जमालुल औलिया सफ़ा नंबर 188 पर वो क्या लिखते हैं एक अब्दाल के मुतालिक? वो अब्दाल के मुतालिक लिखते हैं कि वो बैक वक्त कई शहरों में शब्बाश होते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ ये कैसी शब्बाशी है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर जुर्अत है, हिम्मत है तो जवाब दो कि ये कैसी शब्बाशी थी जो एक वक्त में कई जगहों पर शब्बाश होते? क्या वो तुम्हारी अम्मा के साथ शब्बाश होते हैं? क्या वो अशरफ अली थानवी के साथ होते हैं नालायक? अबे कम से कम शब्बाशी के माने तो देख लिए होते फिरोजुल लगात में कि शब के माने रात होते हैं, अब्बास के माने गुजारने के होते हैं, नालायक कहीं के। लेकिन तुम लोगों को मैं पहले ही कह दिया हूँ कि अक्ल से पैदल होते हैं। फिर रह गई बात, मैं इब्ने माजा की एक हदीस का मफहूम नकल कर रहा हूँ। मेरे पास इब्ने माजा की इबारत मौजूद है कि आप किताबुल हिदायत उठा करके देख लें कि उसमें हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ने फरमाया कि हुजूर टाइम पूरा हो गया, आपका टाइम पूरा हो गया। ये अब्दुल्ला की बोल रहा हूं, मेरा टाइम पूरा हो गया यार। अजी देखो तो 28 में बोल रहे थे आप, जबरदस्त हो गए।